Good afternoon, student. This is the second lecture of the chapter The Age of Industrialization. As I have told in the introduction chapter that we will study about the industrialization before the industrialization, during the industrialization, and after the industrialization. So, as you know that industrialization was started in the second half of 18th century in Britain. But first we will see what was happening before the industrialization. It means in 17th and 18th century how the trade was being held. Student, when we talk about the industrialization, generally there is a thing in our mind that there is a production through the industries, there is a huge large number of production for the international market and like that. But before the factories came in the world, there was also production for the international market that is known as proto industrialization. उस काल को इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले उस काल को जिस समय हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए सामान को बनाते थे और बेचते थे उसे हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट एनसीईआरटी इज सेइंग is that before the industrial revolution, all too often we associate industrialization with the growth of factory industry. All too often we associate, generally हम लिंक करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम फैक्ट्री इंडस्ट्री से लिंक करते हैं. When we talk of industrial production, we refer to factory production. That production is being done in the factory. When we talk of industrial worker, we mean factory worker. Histories of industrialization very often begin with the setting up of first factory. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वह फैक्ट्री के शुरू करने से पहले ही शुरू हो गया था. ओके, हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी ऑफन बिगिन टू सेट अप ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री. फैक्ट्री के बनने से पहले ही हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम शुरू हो गया था, लेकिन वह जो लार्ज नंबर का प्रोडक्शन था वह किसी फैक्ट्री में नहीं बनता था, वह लोगों के घरों में बनता था. लेट अस सी हाउ. देयर इज ए प्रॉब्लम विथ सच आइडियाज. इवन बिफोर फैक्ट्री बिगिन टू dot the landscape in England and Europe, there was a large scale industrial production for an international market. फैक्ट्री के आने से पहले there is a problem with such an idea. Even before factories began to dot a landscape in England and Europe, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्री अपना पैर पसारे उससे पहले ही देयर वॉज ए लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट. अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता था. दिस वॉज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री. Many historians now refer to this phase of industrialization as proto-industrialization. बहुत से इतिहासकार समय के उस काल को जिस समय लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था इंटरनेशनल मार्केट के लिए उसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं. प्रोटो मीन्स होता है पूर्व, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का समय. See here, as you know that these European countries started their colonies in 17
and 18th century itself. As you know that Britishers came in India in 1602 in Surat. In Surat, they established their first factory. So it was this beginning of the 17th century. So different European companies they started their colonies, and because they were doing trade over there, there was a huge demand of the different things. So they started production in their own country. But let us see what was the problem in the production in their own country. Let's see. Let us see here. I think I have to do some setting issue because yeah, in 17, I don't know why it is so. Okay. In 17th and 18th century, merchants from the town in Europe began moving to countryside, supplying money to peasants and artisans, persuading them to produce from an international for an इंटरनेशनल मार्केट 17 और 18 सेंचुरी में जो व्यापारी थे मर्चेंट्स थे फ्रॉम द टाउन इन यूरोप बिगेन मूविंग टू कंट्री साइड शहरों से वह देहात एरिया में ग्रामीण क्षेत्रों में जाने लगे सप्लाइंग मनी टू पीजेंट वह जो किसान थे उनको पैसे देते थे एंड आर्टिशियंस कलाकार को एंड परस्यूडिंग देम टू प्रोड्यूस फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए पैदा करने के लिए उनसे दबाव बनाते थे उनसे कहते थे कि आप एडवांस में लीजिए आप ये रॉ मटेरियल लीजिए ये पैसा लीजिए और हमारे लिए क्लोथ बनाइए With the expansion of world trade and the acquisition of colonies in different parts of the world, the demand for goods began growing. जो दुनिया में व्यापार इंक्रीज हो रहा था एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये जो यूरोपियन कंट्री थे मोस्टली ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी स्पेन पुर्तगीज़ ये अलग अलग जगह जा करके अपनी कॉलोनीज बनाते थे तो उनसे व्यापार के उद्देश्य से उनकी सामान की ज़रूरतें ज़्यादा इंक्रीज होने लगे सो विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड द एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द डिमांड फॉर गुड्स बिगेन ग्रोइंग बट मर्चेंट कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन द टाउन वह शहर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम क्या थी दिस वॉज बिकॉज द अर्बन क्राफ्ट एंड ट्रेड गिल्ड वेयर पावरफुल अर्बन क्राफ्ट एंड ट्रेड गिल्ड मीन्स व्यापार के कुछ व्यवसायी थे व्यापार के कुछ संस्था थे जिन्होंने अपने लोगों को संकुचित करके रखा हुआ था जो ट्रेडर्स थे वो नए लोगों को व्यापार में आने से रोकते थे दिस इज बिकॉज द अर्बन क्राफ्ट एंड ट्रेड गिल्ड वेयर पावरफुल दे वेयर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन दैट ट्रेंड क्राफ्ट पीपल जो ये ट्रेड गिल्ड थे जो व्यापारियों का संगठन था वो करता क्या था वह लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था दे वेयर एसोसिएटेड ऑफ प्रोड्यूसर्स ट्रेड गिल्ड जो थे वह प्रोड्यूसर्स का एक संगठन था एसोसिएशन था दैट ट्रेंड क्राफ्ट पीपल जो कि कारीगरों को प्रशिक्षित करते थे ट्रेनिंग देते थे मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन पे कंट्रोल स्थापित करते थे कितना प्रोड्यूस करना है कितना नहीं करना है किन चीज़ों को करना है इन सब के ऊपर मॉनिटरिंग करते थे रेगुलेटेड कंपटीशन एंड प्राइस बहुत ज़्यादा कंपटीशन वो नहीं करते थे क्योंकि उससे प्राइस गिरने का डर रहता था इन सबको वो मेंटेन करते थे ट्रेड गिल्ड्स एंड अर्बन क्राफ्ट एंड रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ न्यू पीपल इनटू द ट्रेड और यही नहीं वह नए लोगों को व्यवसाय में आने से रोकते भी थे तो व्यापारियों का एक समूह था
जो कि अपने हिसाब से व्यवसाय को कंट्रोल करता था। कहाँ पे? शहरों में, यूरोप के शहरों में। Rulers granted different guild the monopoly right to produce and trade in a specific product। यही नहीं, वह शासकों से, राजाओं से अलग अलग प्रोडक्ट की मोनोपोली वो बना लिए थे। सपोज करिए कोई प्रोडक्ट है, सपोज दैट दिस इज ए स्केल, तो वो स्केल के प्रोडक्शन की मोनोपोली लिए हुए थे कि हम ही स्केल बनाएंगे और कोई दूसरा नहीं बनाएगा। और जब किसी एक व्यक्ति के पास ही स्केल रहेगा तो वो अपने अनुसार जो है उसका प्राइस कंट्रोल कर सकता है कि इसको हम कितने में मार्केट में बेचेंगे जो। तो इस कारण से वह किसी चीज़ के प्रोडक्शन की मोनोपोली राइट लेते थे, एकाधिकार लेते थे कि इसे केवल हम ही बनाएंगे, जिससे प्राइस को रेगुलेट करने में उनको मदद मिलती थी। And ruler granted different guild the monopoly right to produce and trade in specific products. It was therefore difficult for new merchants to set up business in town, so they turned to the countryside। इस कारण से जो नए व्यवसायी थे, जो कि कोलोनाइजेशन के बाद नए नए पैदा हुए, जब देखे कि शहर में उनका काम नहीं चल पा रहा है तो वह देहात एरिया में जाने लगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाने लगे और वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए प्रोडक्शन कराने लगे। What happened when they moved to the countryside? What was the reaction of the artisan? Let us see. In the countryside, poor peasant and artisan began working for merchant। और वहाँ के लोग जो थे वह व्यापारियों के लिए काम करने के लिए तैयार हो गए। As you have seen in the textbook last year, this was a time when open fields were disappearing and common were being enclosed। आपने पिछले साल स्टडी किया था कि किस प्रकार से 17 और 18 सेंचुरी में ओपन फील्ड डिसअपियर हो रहे थे। मीन्स खुले जगह जो गांव का कॉमन्स था जिसपे सब लोग आवागमन कर सकते थे, जो चारागाह था, उसमें कमी आ रहे थे। धीरे धीरे गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले रही थी, जो राजा थे अपने कंट्रोल में ले रहे थे। सो यू हैव सीन द टेक्स्ट बुक लास्ट ईयर, दिस वॉज ए टाइम व्हेन द ओपन फील्ड वेयर डिसअपियरिंग एंड कॉमन्स वेयर बीइंग इनक्लोज्ड। कॉमन्स को घेरा जा रहा था। Cottagers and poor peasants who had earlier depended on common land for their survival, gathering their firewood, berries, vegetables, hay and saws, had to now look for alternative source of income। जो कॉटेजर्स थे, जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो पहले कॉमन लैंड के ऊपर निर्भर थे अपने सर्वाइविंग के लिए, अपने फायरवुड के कलेक्ट के लिए, अपने भोजन की व्यवस्था के लिए, सब्जियों के लिए, घास फूस के लिए, अब वो अपने इनकम के दूसरे सोर्स की तलाश में भी लगे हुए थे, क्योंकि कॉमन्स की घेराबंदी की जा रही थी। जो कॉमन्स थे उनको क्या किया जा रहा था? उनको घेरा जा रहा था, जिससे उनकी जीविका चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। They were being enclosed. Many had teeny plot of land which could not provide work for all member of the household। बहुतों के पास जो था वह लैंड का कुछ टुकड़ा था, लेकिन उससे सभी लोगों को व्यवसाय नहीं मिल सकता था, कुछ ही लोगों को व्यवसाय मिल पाता था। You can say that they were disgustedly unemployed। So when the merchant came around and afforded advance to produce goods for them, peasant household eagerly agreed। इस कारण से चूंकि उनको पैसे की समस्या थी, कॉमन्स सिमट रहे थे और उनके पास ज़मीन भी बहुत कम थी, इस कारण से सबको रोज़गार नहीं मिल रहा था। तो जब मर्चेंट आए, उनसे ऑफ़र किए कि आप जो है हमारे लिए प्रोड्यूस करिए, तो उन्होंने
अपनी इच्छा से उसे स्वीकार लिया, eagerly agreed, वह एग्री हो गए उनके लिए कार्य करने के लिए। By working for the merchant, they could remain in the countryside and continue to cultivate their small plot. मर्चेंट्स के लिए काम करते हुए अब वो अपने गांव पर रह सकते थे और अपने गांव पर रहते हुए उनके लिए काम कर सकते थे। दे कुड रिमेन इन द कंट्री साइड एंड कंटिन्यू टू कल्टिवेट देयर स्मॉल प्लाट, और अपने जो छोटे प्लाट की देख रेख कर सकते थे। तो मर्चेंट्स के लिए भी काम कर सकते थे, साथ में गांव पे रह करके अपने खेत में भी जोताई बुआई या जो भी आउटपुट है वो ले सकते थे। इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंट देयर सिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन। जो कल्टीवेशन से इनकम उनका कम हो गया था, अब प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के कारण वह इनकम इंक्रीज करने में सफल हुआ। इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंट वो ऐड किया देयर सिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन। इट ऑल्सो अलाउड देम ए फुलर यूज ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्सेज। और उसमें क्या होता था, चूँकि घर में ही प्रोडक्शन होता था तो घर के सभी लोग मिल करके वो प्रोडक्शन में सहभागी होते थे, उसमें काम करते थे। एक पिक्चर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से स्पिनिंग हो रहा है 18वीं सेंचुरी में। ये लेडीज स्पिन कर रही है, इनकी मदर कुछ और वर्क कर रही है इसी से रिलेटेड, और ये बच्ची शायद कुछ जो है उसकी कलरिंग कर रही है। तो सारे परिवार के लोग उसमें लगे हुए हैं। You can see each member of the family involved in the production of yarn. Notice that one wheel is moving only one spindle. तो वह एक ही स्पिंडल में वो क्या कर रही है, वह धागा बुन रही है इस व्हील के मदद से। Within this system, a close relationship developed between the town and the countryside. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड के समय इस सिस्टम के डेवलप होने से एक क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो गया शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में। मर्चेंट वेयर बेस्ड इन टाउन बट द वर्क वाज डन मोस्टली इन द कंट्री साइड। जो व्यापारी थे वो बेसिकली कहाँ रहते थे, शहरों में रहते थे, लेकिन उनका काम उनके लिए गाँव में होता था। दे वेयर बेस्ड इन द टाउन बट द वर्क वाज डन मोस्टली इन द कंट्री साइड। ए मर्चेंट clothier in England purchased wool from wool stapler and carried it to the spinners. The yarn or the thread that they spun was taken to subsequent stages of production to weavers, fuller and then to dyers. ये कह रहा है कि जो मर्चेंट थे, जो क्लोथियर मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे, कपड़े के व्यवसायी थे इंग्लैंड में, वो क्या करते थे, वह ऊल परचेज करते थे ऊल स्टेपलर से। स्टेपलर्स में जो उसके साइज के अनुसार जो उसको क्रम से लगाए, छोटे और बड़े के क्रम में, उनसे ऊल लेते थे या कॉटन लेते थे एंड कैरीड इट टू द स्पिनर्स, और उसको बुनकर के पास देते थे। और बुनकर से क्या लेते थे, बुनकर उसको यार्न बनाता था, धागा बनाता था, और उस धागे को द यार्न दैट वाज स्पन वाज टेकन टू सब्सिक्वेंट स्टेज, उसको दूसरे चरण में पहुंचा देते थे, जहां स्टेज टू द प्रोडक्शन टू द वीवर्स। उसके बाद बुनकर के पास जाता था, उसके बाद फूलर के पास जाता था, और उसके बाद से उस पर कलरिंग किया जाता था। सी द मीनिंग इज हियर, फूलर ए पर्सन हु फूल दैट इज गेदर्ड क्लोथ बाई प्लेट्स। मीन्स जब वो बुन जाता था, उसकी कपड़े की बुनाई हो जाती थी, तो उसको प्लेटिंग की जाती, उसको बढ़िया से फोल्ड किया जाता था, और उसके बाद से उसकी कलरिंग की जाती थी। तो ये अलग अलग स्टेप में काम होता था। मीन्स ये जो मर्चेंट थे वह ऊल ले करके स्पिनर को देते थे, स्पिनर के बाद वेवर्स, वेवर्स के बाद फुलर, फुलर्स के बाद डायर्स। तो 4 से 5 स्टेज में कपड़े को तैयार किया जाता था। द फिनिशिंग वॉज डन इन लंदन बिफोर द एक्सपोर्ट
मर्चेंट सोल्ड द क्लॉथ इन द इंटरनेशनल मार्केट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने से पहले लंदन में उस कपड़े की फिनिशिंग की जाती थी, देखी जाती थी कि क्वालिटी वाइज कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है। लंदन इन फैक्ट केम टू बी नोन एज ए फिनिशिंग सेंटर। इसी कारण लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में हम जानने लगे, जहाँ पे कपड़ों की लास्ट फिनिशिंग होती थी, लास्ट चेकिंग होती थी इंटरनेशनल मार्केट में भेजने से पहले। This proto-industrial system was thus the part of a network of commercial exchange. इसमें कॉमर्शियल एक्सचेंज व्यवसायिक लेन देन था। इट वॉज कॉमनली बाई मर्चेंट एंड द गुड्स वेयर प्रोड्यूस बाई ए वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर वर्किंग विद इन देयर फैमिली फॉर्म्स एंड नॉट इन फैक्ट्री। तो ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो नेटवर्क था, कॉमर्शियल एक्सचेंज था, ये जो व्यवसाय था इंटरनेशनल मार्केट के लिए, यह किसी फैक्ट्री में नहीं बनता था। इट वॉज कंट्रोल्ड बाई मर्चेंट एंड गुड्स वेयर प्रोड्यूस बाई ए वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर वर्किंग विद इन देयर फैमिली फॉर्म्स नॉट इन फैक्ट्री। वह परिवार के लोग मिल करके ही विश्व बाजार के लिए प्रोडक्शन करते थे। At each stage of production, 20 to 25 workers were employed by each merchant. प्रत्येक चरण में 20 से 25 वर्कर्स थे, और आपको मालूम था कि 4 से 5 चरण हैं। So this means that each clothier was controlling hundreds of workers. प्रत्येक कपड़े का व्यवसायी लगभग 100 लोगों को रोजगार देता था, जो है कंट्रोल करता था, उनसे काम लेता था। In that way, we have completed the proto-industrialization period, that is the before the industrial revolution. That's all for today.